Hello students, and I'm here, and we will be starting soon the class for forests and their management. This is a TA session for Saturday 3 p.m. to 5 p.m. and we'll be discussing practice problem sets here. So those who are new to this class, as well as people who have been attending the previous classes. So these are problem solving sessions for the point of live interaction for this coast forest and their management by Professor Ankur Avadhya. So my name is Ashutosh, and I'm a PhD PMRF scholar at IIT Kanpur, and my job is to help you guys solve these problems. And today we are going to deal with lecture week 4 of this series, where the lecture week 4 consists of 3 lectures. One is for the tree forms, and 2 lectures for how we measure, or how about tree mensuration, how we measure the trees dimensions, the base, the height, the area, the volume. So all this is covered in lecture week 4. So today we'll be dealing with some of the multiple choice questions or example questions from lecture week 4. I hope everyone is able to hear me properly, and as per earlier request, when I start teaching or when we start solving the problems, I will switch to a mix of Hindi and English so that all the people here can understand me effectively. Okay, so let's start 5 minutes later. Let the class start at 3:10. Meanwhile, so to collect more participants as for this class, meanwhile ask your friends to join, those who have registered for this course, those who are auditing for this course. I will allow everyone to join this call because this is open to everyone. Let us start 5 minutes later after collecting more students in this class. We are 12 right now, or 11, and more people will be joining as we move ahead, and then I will start the class shortly. For repeating information again, all these lectures that we are going to solve today and this session as well is a recorded recorded session. So this recording will be uploaded on YouTube on my channel, the link of which will be provided to you by the NPTEL authorities. And the presentation or the PowerPoint slides that I'm going to present here, along with all the writing, scribbling and the images, will be provided to you as the materials by the NPTEL team again. It will be shared through a drive link. So the recorded lecture of this class as well as the slides that I'm going to present as for this class will be all shared with you. I encourage everyone to attend these live classes because this is where you will have live interaction with while taking the NPTEL course. You can clear your doubts, and we both can have fun learning this course, forests and management. Okay, so let us just wait for 5 minutes, and it's a request to everyone, please mute yourselves and turn off your video chat. All communication with me or for your doubts and answering will be via the chat box, and I have made this rule to ensure the smooth conduction of this class, so that let me be the only mic that is speaking, and you can all ask me and interact me and talk to me via the chat box. Okay, and I will just solve 10 multiple choice questions, which is very similar to what you will be facing in your quizzes and assignments. So these are old course URLs and questions from the same topic. So that is what we are going to solve, and in the process we will try to understand or clear the concepts while solving these questions. That what is the concept behind this, how did we calculate a certain value, or how did we arrive at the correct answer. Okay, and मैं सबको बस यही बोलना चाहूँगा, स्विचिंग टू हिंदी, दैट 5 मिनट बाद हम क्लास शुरू करेंगे व्हेन आई विल प्रेजेंट माय स्लाइड्स. टिल देन आप अपने दोस्तों को एंड दूसरों को रिक्वेस्ट करिए, जो कॉल ज्वाइन करना चाहते हैं, जो क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं. अभी भी मैं सबको अलाउ करूँगा, एंड इट्स अ लिंक वेयर एनीवन कैन ज्वाइन. वी हैव एम्पल टाइम टिल 5 PM. 5 बजे तक हम आराम से कर सकते हैं, एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अगर बीच में कोई भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक जो लेक्चर्स में पढ़ाया गया है आपको नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी एज मेनी टाइम्स एज यू वांट. आप एक बार नहीं, बार बार मुझे पूछ सकते हैं,
मैं फिर से जाके उसको एक्स्ट्रा टाइम दे के आपको समझा सकता हूँ। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा ताकि द क्लास इज़ फन एंड लर्निंग फॉर एवरीवन। ओके, ठीक है। तो जस्ट 5 मिनट्स वेट करते हैं एंड व्हेन सब लोग आ जाएंगे जब, तब हम क्लास शुरू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट्स इनफ टाइम वी हैव वेटेड। और जिसको भी क्लास ज्वाइन करना है वो आ जाएगा, बट हमें अभी स्टार्ट करना ही पड़ेगा ताकि हम टाइम से कंप्लीशन भी कर पाए एंड सारे क्वेश्चंस को टाइम भी अच्छे से दे पाए। ओके, सो फाइनल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, प्लीज़ टर्न ऑफ योर माइक एंड वीडियो चैट ड्यूरिंग दिस होल सेशन एंड यू कैन कम्युनिकेट विथ मी थ्रू द कमेंट बॉक्स। आप अपना माइक एंड वीडियो ऑफ कर सकते हैं एंड मुझसे कमेंट सेक्शन में चैट या बातें कर सकते हैं regarding the course, regarding your doubts and answers. Okay, so let us start this module, lecture week 4, where we are dealing with tree forms and mensuration of the forest. हम trees का measurement, estimation और form के बारे में इस lecture week module में जानेंगे. So I'll just present my slides that I have prepared for this class. Just give me a minute. Just share the screen. I'll reshare again. Share screen. Yeah. And प्रेजेंटेशन खोलते हैं। Yeah, so I hope everyone can see the slides. स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है and can hear my voice clearly. सबको सुनाई दे रहा है? Can everyone hear me and see the slides? Just let me know with a like or a yes in the comment section. अगर सबको सुनाई दे रहा है then हम आगे बढ़ सकते हैं. We can start this class. Very good. So I have joined this call from my other device where I will be checking the chats and comments for the answers. तो जो लोग नए हैं एंड इवन जो पहले क्लासेस भी अटेंड कर चुके हैं,
हम एक फिक्स्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं जो मैंने डिवाइस किया है. सो मैं आपके सामने 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वन बाय वन रखूँगा जिसके 4 ऑप्शंस हैं, वेरी सिमिलर टू द असाइनमेंट एंड क्विजेस दैट यू अटेंड. एंड उन 4 ऑप्शंस में से एक सही जवाब होगा. एंड मैं क्वेश्चंस देने के बाद 30 सेकेंड टू 1 मिनट वेट करूँगा ताकि आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें. So you guys, the participants, please tell me what is the correct answer to these questions, and then मैं सारे comments और answers सब पढ़ के आपको सही आंसर क्या है उस क्वेश्चन का बताऊंगा. एंड देन आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड ब्रीफली व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट या आइडिया या लर्निंग हम करेंगे उस क्वेश्चन के हिसाब से. ओके, सो ये फॉर्मेट रहने वाली है. दिस इज़ द फॉर्मेट दैट वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन बाय मी. So hi everyone, my name is Ashutosh Behera and I am a PMRF scholar at IIT Kanpur. This course is also taught by Professor Ankur Avadhya from IIT Kanpur. Course code is NOC26BT23, Forests and their Management. So I am a PMRF scholar. So PMRF एक फेलोशिप स्कीम है जो हमें मैंडेट करती है. हम NPTEL के साथ कोलैबोरेट करके वी PhD स्कॉलर्स, हम लोगों का मैंडेट है कि हम NPTEL में योगदान करें पढ़ाई के लिए और ये सब के लिए. इसीलिए मैं आपका लाइव सेशन ले रहा हूँ, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ. ओके, दैट वाज ऑल अबाउट मी. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर लेक्चर वीक 4 फॉरेस्ट अंडर मैनेजमेंट. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फॉर एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर द रेफरेंस फॉर द बेस ऑफ द सिलेंडर इज डैश. क्वेश्चन समझ में आया? एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर के लिए reference for the base of the cylinder is dash. Option A, base of the tree, tree का base है. Option B, breast height. Option C, 10% of tree height. Option D, 20% of tree height. 4 ऑप्शंस है आपके पास. एंड एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला याद करें आप क्या होता है. उसमें बेस ऑफ द सिलेंडर किस रेफरेंस से लिया जाता है? क्या वो पेड़ का बेस से लिया जाता है या ब्रेस्ट हाइट से लिया जाता है, 10% ऑफ ट्री का हाइट या 20% ऑफ ट्री हाइट? अंडरस्टूड? सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, 30 सेकेंड से 1 मिनट इंतज़ार करते हैं. एंड सारे पार्टिसिपेंट्स आप मुझे बताइए कि क्या है इसका सही जवाब. यू कैन पोस्ट योर आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स, ऑप्शन ABCD, और जस्ट राइट द फुल आंसर वॉट एवर सूट्स यू. देन 30 सेकेंड के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या करेक्ट आंसर है. एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर. ओके, मैं ऑलरेडी देख पा रहा हूँ कि दैट मैनी पीपल हैव आंसर्ड, स्टार्टेड आंसरिंग. बहुत अच्छा. मुझे क्लास के बारे में यही पसंद आता है कि क्लास की पॉपुलेशन चाहे कम हो या ज़्यादा हो, एटलीस्ट सब लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ वेरी नाइस. आप लोगों को शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको ना माइक पे बोलना है, ना आपको वीडियो चैट में बोलना है. आपका आंसर गलत भी हो तो कोई बात नहीं. सही आंसर क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. एंड हम सब कुछ समझने वाले हैं ताकि आप आगे गलती ना करें. ओके, लेट अस रीड व्हाट आर द आंसर्स इन द चैट बॉक्स. ओम सेज B, साक्षी सेज C, समय ऑप्शन A, स्वयं प्रिया प्रेमवर्धन ऑप्शन A, प्रणव प्रेरणा तनीषा ऑप्शन A. ओके, सो कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन A, B और C पे भी कुछ आंसर्स आया है. ओके, तो आई फील लाइक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर को लेके. हम सब समझेंगे कि क्या है. पहले मैं आपको आंसर बता दूं कि इसका सही आंसर क्या होगा. फॉर एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर द रेफरेंस फॉर द बेस ऑफ द सिलेंडर इज ऑप्शन A, बेस ऑफ द ट्री. एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर के लिए बेस ऑफ द ट्री से बेस रेफरेंस लिया जाता है उस सिलेंडर का. ओके, सो ऑल दोज हु हैव आंसर्ड ऑप्शन A, आप लोगों का सही जवाब है. B एंड C वाले आप लोग इस बार गलत हो गए, बट कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में आपको मौका मिलेगा. ओके, सो लेट अस ब्रेक डाउन दिस टर्म. आपको टर्म में ही आंसर छुपा हुआ मिलेगा. एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर मतलब एक
ऐसा फॉर्म फैक्टर जो एब्सोल्यूट है। अब एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर, फॉर्म का मतलब क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉर्म फैक्टर. It represents the ratio of the volume of tree to the volume of a specified geometrical solid of similar height and basal diameter. तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन. अगर ग्रे वाला एरिया हमारा एक्चुअल ट्री है जिसमें टेपर है, टेपर मतलब कोनिकल स्ट्रक्चर है, टेपर मतलब नॉन यूनिफॉर्मिटी, ऊपर से छोटा होके नीचे से मोटा होना. एक ट्री का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऐसा होता है, कभी उसका स्टेम या ट्रंक यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो टेपर के ऊपर डिपेंड करता है. और टेपर की वजह से हम इसका फॉर्म कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द ट्री टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेसिफाइड ज्योमेट्रिकल सॉलिड ऑफ सिमिलर हाइट एंड बेसल डायमीटर. तो बेसल डायमीटर अगर हम सेम मान लें और एक ज्योमेट्रिकल सॉलिड के अंदर कंपैरिजन का वॉल्यूम ले, तो उसको बताएंगे हम फॉर्म फैक्टर. एंड द ज्योमेट्रिकल सॉलिड इज जनरली अ सिलेंडर. सो ट्री का सिंस कोनिकल स्ट्रक्चर है, अगर इसको बेस लेके हम एक ज्योमेट्रिकल सॉलिड बनाएं तो ये सिलेंडर आएगा. इसीलिए फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या आ जाता है? वॉल्यूम ऑफ द ट्री बाई वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. अगर हम इमेजिनरी सिलेंडर के वॉल्यूम से ट्री का वॉल्यूम को डिवाइड करें तो हमें मिलता है फॉर्म फैक्टर. तो ये है फॉर्म फैक्टर का डेफिनेशन. अब एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर क्या है? एब्सोल्यूट मतलब एकदम एग्जैक्ट, जो आइडियल हो सकता है, जो हाइपोथेटिकल हो सकता है, बट एब्सोल्यूट होना चाहिए. इसीलिए एब्सोल्यूट में हम बेस ऑफ द ट्री से मेजरमेंट लेते हैं. तो सिलेंडर का बेस और ट्री का बेस सेम होना चाहिए, तब जाके ये बनेगा एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर. ठीक है, मैं आपको ये करके बताता हूँ, ड्रॉ करके बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है. एक मिनट. यस. तो फॉर्म ऑफ द ट्री, फॉर्म ऑफ ट्री क्या होता है? मतलब ट्री का आकार क्या है या कैसा है, ये हमें बताता है. तो ट्री कुछ ऐसे हो सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं. तो इन सब को हम फॉर्म्स बोलते हैं कि उनका शेप क्या है या आकार क्या है. एंड टेपर किसको बोलते हैं? डिक्रीज और इंक्रीज इन हाइट और ऑफ द स्टेम, डिक्रीज और इंक्रीज इन दी गर्थ ऑफ द स्टेम. जैसे यहाँ पर ये डिस्टेंस छोटा है और यहाँ पर ये बड़ा है, तो इसको टेपर बोलते हैं. तो फॉर्म एंड टेपर का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रोफेसर अवधिया ने दिया है. और फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला हमने जस्ट देखा अभी पहले. क्या बताता है फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला? फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम एक ट्री लें जो कि ऐसा है, कोन जैसा, इसका फॉर्म या शेप हम कैसे डिटरमाइन करें? अगर इसी के मुकाबले हम एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लें जिसका फॉर्म हमें पता है और उसका बेस का एरिया इस सिलेंडर के वॉल्यूम से अपना ट्री का वॉल्यूम कितना डिफर करता है, दैट इज द फॉर्म फैक्टर, कि ये कितना परसेंटेज अपने सिलेंडर जैसा है. तो इसको हम फॉर्म फैक्टर बोलते हैं. इसीलिए हम, अगर इसका वॉल्यूम होगा कैपिटल V और इसका वॉल्यूम होगा स्मॉल v, देन फॉर्म फैक्टर को बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्टेम या वॉल्यूम ऑफ ट्री डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर. ओके, सो इसका फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल V बाई स्मॉल v. तो ये है फॉर्म फैक्टर. तो फॉर्म फैक्टर हम क्या है समझ गए कि शेप ऑफ द ट्री हम कैसे जान पाएंगे. अब एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर क्या बोलता है? एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर बोलता है द रेशियो ऑफ एक्चुअल ट्री वॉल्यूम, ट्री का स्टेम वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. मतलब एक्चुअल हाइट जो है, एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री से हमें मिलेगा एक्चुअल वॉल्यूम. तो यही एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय
इमेजिनरी सिलेंडर का वॉल्यूम जो उसके आसपास के आंकन में आ सकता है, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर। So the absolute form factor therefore is a technical measurement used to describe the shape of a tree stem. It is where the reference is the base of the tree. Sorry. बेस ऑफ द ट्री को हम रेफरेंस लेंगे, तब जाके ये एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर बनेगा। सो फॉर्म फैक्टर का हमेशा फॉर्मूला रहेगा स्टेम वॉल्यूम बाई सिलेंडर वॉल्यूम। अब ये स्टेम वॉल्यूम का जो क्वांटिटी है ये डिपेंड करेगा हम स्टेम वॉल्यूम में रेफरेंस किसको ले रहे हैं या डायमीटर किसका ले रहे हैं। तो जब एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर होगा हम बेस को डायमीटर लेंगे एंड देन इमेजिनरी सिलेंडर का बनाएंगे। तो ये होता है एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको समझ में आया देन आप मुझे यस या लाइक कर सकते हैं, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर क्या सबको समझ में आया? फॉर्म ऑफ द ट्री क्या है हमने ये देखा, एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर भी देखा, जिसमें बेस ऑफ द ट्री से हम रेफरेंस सिलेंडर का हाइट लेते हैं एंड बेस ऑफ द ट्री से हम ट्री का स्टेम का एक्चुअल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं। Did everyone understood? Then please hit a like or a yes. If not, then I can explain again. आप मुझे कमेंट्स में बताइए या फिर लाइक या उससे बताइए। आई डोंट सी एनी रिस्पॉन्स तो। क्या सबको समझ में आया? ओके, ओम गिव्स अ लाइक। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया। फिर अगर आप नहीं पूछ रहे हैं देन हम आगे बढ़ सकते हैं। सो फॉर्म एंड टेपर को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको फॉर्म फैक्टर समझ में आएगा। आई थिंक मुझे इसको रिपीट कर देना चाहिए बिकॉज नॉट मेनी पीपल आर कॉन्फिडेंट। तो मैं फिर से समझाता हूँ फॉर्म का मतलब क्या है और टेपर का मतलब क्या है। सो फॉर्म का मतलब शेप ऑफ द ट्री, एंड टेपर का मतलब ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ थिकनेस once we move from bottom to top. सो एक ट्री का स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा होता है, तो नीचे काफ़ी उसका मोटाई ज़्यादा रहता है एंड जैसे जैसे हम ऊपर तक जाते हैं वो पतला होता जाता है। तो इस चीज़ को टेपर बोलते हैं, जो मैं यहाँ भी आपको समझा रहा था। एंड फॉर्म क्या है, शेप ऑफ द ट्री क्या है। सो बिकॉज ऑफ द टेपर फॉर्म ऑलमोस्ट कोनिकल या सिलेंड्रिकल होता है। तो इस फॉर्म फैक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जो हमें बताता है जो हर एक ट्री का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो फॉर्म फैक्टर इंडिविजुअल ट्री के लिए अलग होता है। ये हर ट्री के लिए अलग होता है। तो इस फॉर्म फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मान लो हम इस ट्री का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फॉर्म फैक्टर की, इसका मोटापा और इसका आकार कैसा है। तो इसलिए हम एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लेंगे, द क्लोजेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप टू दिस फॉर्म
और दिस कोन इज अ सिलेंडर, क्योंकि कोन का ऊपर का हिस्सा बंद नहीं है, ये खुला हुआ है। तो अगर हम इसके आसपास के सिलेंडर ले लेंगे देन हम इसको एक फॉर्म फैक्टर असाइन कर पाएंगे, जिसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल ट्री डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर विच इज वेरी क्लोज टू द फॉर्म ऑफ द ट्री। एंड देन एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर क्या बोलेगा, ये जो स्टेम का जो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे या ट्री का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम बेस का जो रेफरेंस है उसको लेंगे। बेस का डायमीटर कितना है, बिकॉज वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, ये है सिलेंडर वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, या फिर इसको अगर हम लिख सकते हैं पाई डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर इंटू एच। अब डी हमारा डिपेंड करेगा हम किस जगह से डी ले रहे हैं, बिकॉज फॉर्म के हिसाब से इस जगह पर डी अलग है, ये D1 अगर हुआ तो ये D2 हुआ, सॉरी ये D2 होगा, एंड हर जगह पे इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो किस वॉल्यूम को हम रेफरेंस में ले ताकि हमें एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर मिले, हम सबसे निचले हिस्से के रेफरेंस को लेंगे विच इज़ द बेस ऑफ द ट्री, तभी जाके हमें एब्सोल्यूट फॉर्म का एस्टिमेट होगा। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर विच इज़ द ट्री वॉल्यूम और द स्टेम वॉल्यूम बाई सिलेंडर वॉल्यूम। समझ में आया? इज इट नाउ क्लियर टू द स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बोलिए, तो फिर मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। बट आई डोंट वांट एनी ऑफ द स्टूडेंट्स टू गो बैक एंड थिंक अबाउट इट ट्वाइस। ठीक है, आपको सब समझ में आके ही हम फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। For normal form factor, the reference for the base of the cylinder is dash. अब तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। For normal form factor, the reference for the base of the cylinder is dash. Option A, base of the tree. Option B, breast height. Option C, 10% of tree height. Option D, 20% of tree height. ठीक है, अगेन ये दूसरे तरीके का फॉर्म फैक्टर है जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म फैक्टर। इसमें रेफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर किसको लिया जाएगा? क्या बेस ऑफ ट्री को लिया जाएगा, ब्रेस्ट हाइट को लिया जाएगा, 10% ऑफ द ट्री हाइट और 20% ऑफ द ट्री हाइट? ठीक है, कुछ 30 सेकेंड्स के बाद इस क्वेश्चन को रिविजिट करते हैं। तब तक आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, जो भी आपको लग रहा है ये सही आंसर है। प्लीज़ आप इंटरनेट वगैरह का यूज़ ना करें, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप अच्छे से इस सब्जेक्ट को समझ पाएँ। आई नो इट इज़ वेरी ईजी टू फाइंड द आंसर इन द इंटरनेट, बट आप खुद से समझने की कोशिश करिए, तभी ये क्लास आपको बेनिफिट कर सकता है। ओके, आप अपना टाइम लीजिए आराम से, 30 सेकेंड्स, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। फॉर्म फैक्टर, नॉर्मल फॉर्म फैक्टर में रेफरेंस किसको लेते हैं? जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने देखा कि एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर में किसको रेफरेंस लेते हैं। ओके, टाइम टू चेक द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में देखते हैं किसने क्या आंसर दिया है। प्रेरणा से सी, साक्षी से सी, प्रिया सुमन सी, प्रतीक्षा, अनीशा, समय पाटिल सी। ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर नहीं किया है, बट शायद वो थोड़ा डर रहे हैं या पता नहीं क्या है, बट बहुत लोगों ने ऑप्शन सी को चुना है। लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। फॉर नॉर्मल फॉर्म फैक्टर द रेफरेंस फॉर द बेस ऑफ द सिलेंडर इज ऑप्शन सी, 10% ऑफ ट्री हाइट। 10% ऑफ ट्री हाइट को नॉर्मल फॉर्म फैक्टर या ट्रू फॉर्म फैक्टर भी बोलते हैं। ओके,
सो ऑल ऑफ दोज हु हैव आंसर्ड सी, वेरी वेल डन, आपका आंसर सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओम ने भी आंसर कर दिया, वेरी गुड। ओके, ट्रू या नॉर्मल फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सेम है, फॉर्म फैक्टर का सारा फॉर्मूला सेम है, विच इज स्टेम वॉल्यूम बाय सिलेंडर वॉल्यूम। बट यहाँ पर हम रेफरेंस हाइट किसको लेंगे? 10% ऑफ द ट्री हाइट। अगर ये ट्री की टोटल हाइट है, इसको अगर हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करें, देन द फर्स्ट एक पार्ट और 9 पार्ट अलग, एक पार्ट ऑफ द ट्री हाइट विच इज 10% ऑफ द ट्री हाइट को रेफरेंस हाइट लेंगे, एंड उस हाइट पे जो भी डायमीटर है उससे हम स्टेम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ओके, देन वो बनेगा नॉर्मल फॉर्म फैक्टर या ट्रू फॉर्म फैक्टर। तो उससे हम बेस, सिलेंडर का बेस वो लेंगे, देन वो बनेगा नॉर्मल फॉर्म फैक्टर। नाउ 10% ऑफ हाइट क्यों लिया जाता है? द डायमीटर एट 0.1 h or 10% of total height is close to the lower stem but slightly above the butt swell. It provides a more stable and representative reference diameter. It reduces error caused by irregular butt shapes. So most often हम ट्री को assume तो कर लेते हैं कि वो cylindrical है, but trees हमेशा cylindrical नहीं होता है। तो कैसे होता है, देखते हैं कैसे होता है। सो 10% ट्री हाइट को क्यों लिया गया है? या अगर ट्री हमारा ऐसा है और यहाँ पर उसका कैनोपी है, तो ये था एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर के लिए। बट अब नॉर्मल फॉर्म फैक्टर या ट्रू फॉर्म फैक्टर के लिए हम 0.1 h ले रहे हैं, या 10% ऑफ द टोटल ट्री हाइट। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ पर जो डायमीटर है ये d लिया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग द स्टेम वॉल्यूम, एंड यहाँ पर जो इमेजिनरी सिलेंडर बनेगा इसमें ये वाला d जाएगा जो 10% ऑफ द हाइट पे लगा है। तो यहाँ से जो सिलेंडर बनेगा उससे हम फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो ये होता है नॉर्मल फॉर्म फैक्टर या ट्रू फॉर्म फैक्टर। क्यों यहाँ 10% हाइट क्यों दिया गया है, बेस क्यों नहीं? क्योंकि मेनी अ टाइम्स बेस पे मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। एब्सोल्यूट बेस ऑफ द ट्री पे डायमीटर मेजर करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ट्री का एब्सोल्यूट बेस तक हम कोई टेप या कैलिपर्स या कोई भी तरीके से हम उसको मेजर नहीं कर पाते हैं। सो बेस्ट क्या होगा, हम अगर एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लें जो दुनिया भर में चल सकता है। एब्सोल्यूट ट्री हाइट मेजर करना मुश्किल है, इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया है। ट्री का टोटल हाइट लेट से 100 मीटर है, देन ट्री का हाइट 10th मीटर पे 10 मीटर्स पे क्या उसका डायमीटर है, उससे जो सिलेंडर बनेगा इमेजिनरी, दैट विल बी यूज टू काउंट और कैलकुलेट द फॉर्म फैक्टर, देन इसको बोला जाएगा नॉर्मल फॉर्म फैक्टर। एंड ये दुनिया भर में फॉलो हो सकता है, बिकॉज 10% ऑफ द ट्री हाइट डज नॉट डिपेंड, इज अ रेशियो काइंड ऑफ क्वांटिटी, एंड ये हर जगह वर्ल्ड वाइड फॉलो हो सकता है। वर्ल्ड वाइड सेम कैसे फॉलो हो सकता है? चाहे ट्री की हाइट कितनी भी वेरी कर जाए, चाहे ट्री की हाइट कितना भी चेंज हो जाए, अगर ट्री का हाइट 120 मीटर हुआ तब भी ये फॉर्मूला ट्रू होल्ड करेगा, बिकॉज 10% ऑफ द ट्री हाइट मतलब 12 मीटर्स पे जो भी डी है उससे जो सिलेंडर बनेगा वो हर जगह अप्लाई हो सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्री की हाइट कितनी है, कहाँ मेजर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें अकाउंट को लेके हम ये फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म फैक्टर और द ट्रू फॉर्म फैक्टर ऑफ अ फॉरेस्ट और अ ट्री। क्या सबको समझ में आया? Did everyone understand why 10% of a height? Because it provides a more stable and representative reference for diameter, and it reduces error caused by irregular butt shapes. तो बहुत बार ये भी होता है कि ट्री नीचे से काफ़ी बट्रेस जैसा शेप हो जाता है। इफ़ यू रिमेंबर द लेक्चर,
बहुत ट्रीज नीचे से काफ़ी ऐसे उनका चौड़ा या फैलाव रहता है, तो ऐसे इरेगुलर बड शेप्स, इन सब को ये एलिमिनेट करता है, बिकॉज 10% ऑफ द ट्री हाइट पे सब कुछ साफ है, मेजर भी कर सकते हैं एंड फॉर्म फैक्टर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड और नॉर्मलाइज्ड फॉर्म फैक्टर, इसीलिए इसको नॉर्मल फॉर्म फैक्टर बोलते हैं. इज इट अंडरस्टूड टू द स्टूडेंट्स? क्या ये सबको क्लियर हो गया? नॉर्मल फॉर्म फैक्टर इज 10% ऑफ द ट्री हाइट. अगर आपको समझ में आ गया देन गिव मी अ लाइक और अ येस इन द कमेंट सेक्शन, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं. ओके, कूल. वैसे मुझे दूसरों का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम लग रहा है. देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे बोल सकते हैं. वी कैन गो थ्रू दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन, और व्हेन वी गेट ओवर विथ ऑल द क्वेश्चंस वी स्टिल हैव टाइम लेफ्ट, तो आप अपने डाउट्स मुझे पूछ सकते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. शायद क्वेश्चंस करते करते हमें समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. In India, the breast height is considered to be dash. What is the breast height that is considered in India? Option A, 1.37 meters. Option B, 1.47 meters. Option C, 1.57 meters. And option D, 2.47 meters. ठीक है, आपको समझ में आ गया. ब्रेस्ट हाइट क्या कंसिडर किया जाता है इंडिया में? कौन सी हाइट को ब्रेस्ट हाइट कंसिडर किया जाता है? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये वैल्यू जो है ये जगह से जगह चेंज कर सकती है, ये यूनिवर्सल नहीं है, इसीलिए ये नॉर्मल फॉर्म फैक्टर या ट्रू फॉर्म फैक्टर में नहीं आता है. इसका एक अलग से फॉर्म फैक्टर है जो कि हम आगे देखने वाले हैं. सो आप मुझे बताइए कि ब्रेस्ट हाइट इंडिया में कितना कंसिडर किया जाता है? ओके, आई कैन स्टिल सी सम आंसर्स इन द चैट बॉक्स. काफ़ी जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर देते हैं. देखते हैं कि क्या लोगों ने आंसर किया है. साक्षी सेज ए, समय ए, प्रिया ए, अनीशा ए, ओम ए एंड प्रतीक्षा गायकवाड ए. ओके, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? क्या आप लोगों को आंसर करना है या आप नहीं करना चाहोगे? आई वुड एनकरेज एवरी वन टू एटलीस्ट डू गेस वर्क. आपको जो भी लगता है कि आंसर हो सकता है आप करिए, बिकॉज दैट विल हेल्प इन इंटरेक्शन एंड दैट विल हेल्प यू गेट ग्रिप ऑफ दिस क्लास एज वेल, है ना? आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है. देर इज़ नो प्रेशर फॉर टॉकिंग और शोइंग योर वीडियो. यू कैन जस्ट पोस्ट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके, it's time to reveal what is the correct answer to question number 3. In India, the breast height is considered to be option A, 1.37 meters. So again, सारे लोगों ने जिसने A आंसर किया है, आपका आंसर सही है. 1.37 is the breast height that is considered for India. Okay, now ये breast height क्या होता है? Breast height एक ऐसा पैरामीटर है जहाँ पर हम डायमीटर मेजर करते हैं. So this parameter is also known as diameter at breast height is the standard measurement of a tree's stem diameter taken at a fixed height above ground. ठीक है, ट्री का डायमीटर कहाँ पर मेजर करना है? ऐसी जगह मेजर करना है जो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर हो. एंड ये वाला चीज़ जो है ये हर कॉन्टिनेंट के लोगों के हाइट के हिसाब से मेजर किया गया है. व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ एन इंडियन man or a woman
उनके हिसाब से ये ब्रेस्ट हाइट सिलेक्ट किया गया है कि इतने हाइट के अबव हम अगर डायमीटर लेंगे तो ये हमें ट्री का मेजरमेंट सही से बताएगा. So this height is about 4.5 feet in India, which is 1.37 meters. This is known as breast height, and the diameter measured at the breast height is called diameter at breast height or DBH. तो ये इंडियंस के लिए 4.5 फीट है. वेराज दूसरे कंट्रीज में ये थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है. यूनाइटेड स्टेट्स में भी 4.5 फीट फॉलो करते हैं, 1.37 मीटर्स. यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में 1.3 मीटर्स फॉलो करते हैं. कनाडा में 1.3 और 1.37. जापान में थोड़ा और छोटा होता है क्योंकि वहाँ के लोगों की हाइट, एवरेज हाइट थोड़ी छोटी होती है, 1.2 to 1.3 मीटर. एंड दीज यूनिट्स आर फिक्स्ड एंड दिस DBH is fixed. The breast height is fixed for a certain area or population because उस हाइट पे मेजरमेंट लेना एरर फ्री होता है, मेजरमेंट रिकॉर्ड करना एरर फ्री होता है. एंड दैट हाइट पे जो आपको डायमीटर मिलेगा वो आपको ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है. एंड इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट और कोरिलेट इंफॉर्मेशन विद द डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट. So for India it is 1.37 meters, and for various other regions it is different or depending upon the average height of the population in the state or the country. Is it clear to the students? Breast height क्या होता है, diameter at breast height क्या होता है, दो अलग चीज़ें हैं. ब्रेस्ट हाइट है उस हाइट पर जहाँ हम मेजरमेंट कर सकते हैं आराम से, तो ट्री के बेस से कुछ मीटर्स के हाइट पे होता है. एंड डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, ब्रेस्ट हाइट पे आपने जो डायमीटर मेजर किया पेड़ का, दैट इज द डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट. इज इट क्लियर टू द स्टूडेंट्स? रिप्लाई विद अ थम्स अप और अ येस इन द चैट बॉक्स if it is clear. Okay, very good, thank you Sakshi. Okay, I think सबको समझ में आ गया. सिंस बहुत ज़्यादा लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वॉट एवर डिफ़िकल्टी यू फेस यू कैन टेल मी आफ्टरवर्ड्स. जब क्लास में एंड कर दूंगा तब आप मुझे बता सकते हैं. वी कैन गो बैक एंड री डू द क्वेश्चन और द कॉन्सेप्ट दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड. ओके, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4. Measurement of height based on similar triangles comes under dash. Measurement of height based on similar triangles comes under option A similar measurement, option B dissimilar measurement, option D C direct measurement और option D indirect measurement. एक ट्री का हाइट जानने के लिए हम सिमिलर ट्राइंगल्स मेथड का यूज करते हैं. ये किस टाइप ऑफ मेजरमेंट के अंडर कैटेगराइज होगा? व्हाट काइंड ऑफ मेजरमेंट इज दिस? कम ऑन गाइज, लेट्स टेक 30 सेकेंड्स. मैं चाहता हूं आप सब लोग पार्टिसिपेट करें. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, आपको जो भी लगता है, वॉट एवर यू थिंक इज द करेक्ट आंसर. सिमिलर ट्राइंगल्स मेथड में जब हम हाइट मेजर करते हैं वो किस कैटेगरी में आता है? जिसका भी इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है या फिर ऑन ऑफ चल रहा है वो शायद लीव हो रहे हैं. पीपल आर गेटिंग लेफ्ट फ्रॉम द कॉल, बट प्लीज़ आस्क देम टू रीजॉइन because we are going to have an interesting class on forms and mensuration of the trees today. So ask them to rejoin. जिसको भी ज्वाइन करना है कॉल को किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर सकता है. जो भी क्वेश्चन करेंटली चल रहा होगा उससे आगे बढ़ेंगे हम. ओके, लास्ट टाइम टू आंसर, पोस्ट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. मैं खुद चैट बॉक्स पढ़ने वाला हूँ. ओके, लॉट ऑफ आंसर्स. Sakshi says D, Priya says A, Rohan D, Pratiksha says D, Sushant, Pranav and Prerna D. Okay, तो कुछ लोग D बोल रहे हैं, कुछ लोग A बोल रहे हैं. Let us see what is the correct answer. Measurement of height based on similar triangles comes under
इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जो पहला ऑप्शन था विच इज सिमिलर मेजरमेंट, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इट इज अ मेथड ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द हाइट ऑफ ट्री। Okay, so everyone who answered option D are correct. Let us see what is this similar triangle method and what are similar triangles and how it can be, this method can be used to estimate or to measure the height of a tree. Now, what are two similar triangles? So these are some of the properties of two similar triangles. Two triangles are said to be similar when they have the same shape but size may or may not vary, has corresponding angles congruent. They have congruent angles, that means angle Z is equal to angle P, angle Y is equal to angle Q, and angle X is equal to angle R. So angle Z is equal to P, Y equal to Q, X is equal to R. तभी हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं. And by law the corresponding sides also fall in the same ratio, such as x by r, side zy by pq is equal to zx by pr is equal to yx by qr. These are the properties that are followed by triangles which are similar. तो इसको यूज करके हम कैसे टाइप के मेजरमेंट कर सकते हैं ट्री के हाइट के बारे में. An application of similar triangles is to be able to determine lengths indirectly. हम डायरेक्टली तो ट्री का मेजरमेंट लेने के लिए हमें ट्री के ऊपर चढ़ के वहाँ से मेजरमेंट करना पड़ेगा. इफ़ यू वांट टू टेक एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट then we use this similar triangles method to do an indirect measurement. Remember the sides of the similar triangles are proportional. So मैं एक मेथड के बारे में या एग्जाम्पल के बारे में बताऊंगा जिसमें हमने सिमिलर ट्राइंगल मेथड से ट्री का हाइट निकाला है. ओके तो चलो देखते हैं कि कैसा है ये सिमिलर ट्राइंगल मेथड में ट्री का हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे और राइट नाउ इज कॉल्ड द रॉड मेथड, जहाँ पर हम एक रॉड का यूज़ करके हम हाइट मेजर कर सकते हैं ट्री का बिना डायरेक्टली ट्री को मेजर किए. ओके सो सिमिलर ट्राइंगल मेथड क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, these two triangles are similar when angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. And by property, so angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle F or angle C is equal to angle F. And by property, side AB by DE, ये सब proportional होते हैं, is equal to side AC by DF is equal to side BC by EF. This happens when triangle ABC is similar to triangle DEF. ओके नाउ इसको यूज़ करके हम ट्री का हाइट कैसे निकालें रॉड मेथड से. सो रॉड मेथड में क्या होता है, लेट अस एज्यूम दैट दिस इज द ट्री. ये ऐसा ट्री है हमारा, ट्री को स्ट्रेट लाइन मानते हैं. तो रॉड हम इनडायरेक्टली ट्री का हाइट कैसे मेजर कर सकते हैं. सो व्हाट वी डू इज वी टेक अ स्मॉल रॉड, छोटा सा एक रॉड लेते हैं या फिर एक हाइट लेते हैं जिसका हाइट है h. वो रॉड का हाइट हमें पता है विच इज़ h. एंड लेट्स से द ट्री का हाइट इज कैपिटल H, जो हमें ढूंढना है कैपिटल H. एंड हमने रॉड को रखा है. सो द सन ड्यूरिंग द डे टाइम विल कास्ट अ शैडो
अगर ये सन है तो सन क्या करेगा, सन के रेज से ऐसे शैडो आएगा, ओके। तो सन के रेज से ट्री का एक शैडो कास्ट होगा जो कि यहाँ तक आएगा, लेट्स से यहाँ तक आया, दिस पॉइंट तक, ओके। और इस टिक का भी शैडो यहाँ तक आया, इस पॉइंट तक। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और बढ़ा कर देते हैं, यहाँ तक आया समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सन के रेज को इफ़ यू एज्यूम दैट दे आर पैरेलल, सो सन सेम एंगल पे इस ट्री पे भी, इस टिक पे भी शाइन करेगा। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इट क्रिएट्स विद द ट्री आर इक्वल, एंड ये एंगल तो 90 डिग्री है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। एंड ये एंगल तो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। सो इसको अगर हम ट्राइंगल ए बी सी कर दें तो ये होगा डी ई, अगर रॉड का हाइट हुआ, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई सी आर सिमिलर। सो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई सी आर सिमिलर बिकॉज ये तीनों एंगल सेम है बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी इज इक्वल टू बी सी बाई ई सी। तो इसमें हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हम ए सी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना दूर से ये आ रहा है, ए सी का लेंथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, डी सी का लेंथ नहीं कर सकते। अगर हम इन दोनों पैरामीटर्स को साथ में ले लें, विच इज़ ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई सी, तो इसको लिखने से दूसरे तरफ से क्या होगा, ए बी इज द ट्री हाइट divided by DE is the rod height which is small h, and BC हम मेजर कर सकते हैं कि शैडो ट्री के पोजीशन से इसका लेंथ कितना है। BC का क्या होगा, रॉड शैडो फ्रॉम ट्री डिवाइडेड बाई EC का वैल्यू क्या होगा, रॉड शैडो फ्रॉम रॉड। ठीक है, एंड ये दो वैल्यू हम इजीली मेजर कर सकते हैं। हमने जहां पर रॉड प्लेस किया है उस रॉड पे वो रॉड कितना दूर है डिस्टेंस ट्री से, ये हमें पता है। इफ दिस इज D, सो रॉड का शैडो कितना डिस्टेंस पे, अगर ये S है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h इंटू रॉड शैडो फ्रॉम T कितना है, D प्लस S डिवाइडेड बाई रॉड शैडो फ्रॉम रॉड कितना है, S। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इनडायरेक्टली ट्री का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्री का हाइट कितना है, वेयर h इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री। जहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स हमें नोन होंगे। रॉड का हाइट कितना है, बिकॉज वी आर यूजिंग द रॉड, वी नो हाउ टॉल द रॉड इज। उसका डिस्टेंस कितने पे है ट्री से, वो मेजर कर सकते हैं। रॉड से उसके शैडो का डिस्टेंस कितना है, ये भी मेजर कर सकते हैं बाय द शैडो का डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूला से हम हाइट ऑफ द ट्री निकाल सकते हैं यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल मेथड्स। And this is an example of indirect measurement.
ओके, क्या ये सबको समझ में आया कि कैसे हम सिमिलर ट्राइंगल्स मेथड को यूज़ करके वन ऑफ दीज मेथड्स दैट आई टोल्ड यू ट्री की हाइट को मेजर कर सकते हैं using a rod or using many other methods, but the principle that we are applying here is the similarity of triangles, and this is a form of indirect measurement. Is it clear to the students? क्या सबको समझ में आया? If everyone has understood, then please let me know with a yes or no in the chat box. आप मुझे likes भी दे सकते हैं in the video, and then we can move ahead. क्या सबको समझ में आया हमने कैसे यहाँ पर हाइट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाया यूजिंग द सिमिलर ट्राइंगल रूल दैट दीज टू ट्राइंगल्स बीइंग सिमिलर. Yes, I think Rohan, do you have a question? You can type your question in the chat box. Otherwise, we can move ahead and we can go to the next question. Okay. So किसी भी पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आया then I can repeat it for you. It's not a problem for me. Okay. Good. Let's move on to the next question. Next question. For a tree with DBH 45.6 centimeter, height 27 meters and total stem volume of 1.78 circumference, the artificial form factor for the tree is dash. क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या क्या यहां गिवन है देख लीजिए. DBH गिवन है. What is DBH? DBH is the diameter at basal height, diameter at breast height. Actual height of the tree दिया गया है 27 meters. Total stem volume दिया गया है 1.78 cum. Question में है what is the artificial form factor of the tree? Okay. Options are 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. इसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. पेन एंड पेपर लीजिए एंड आराम से कैलकुलेट करिए, या फिर जस्ट एक कैलकुलेटर से भी हो जाएगा. करके मुझे आप अपना आंसर बताइए. पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स एंड देन आई विल टेक अ लुक एट इट. आपको कैलकुलेट करना है आर्टिफिशियल फॉर्म फैक्टर. इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं इफ़ पीपल आर ट्राइंग टू कैलकुलेट. But I already see there are some answers in the chat box. Very nice people. Students ने बहुत मेहनत की है. I can see Samay Patil says D, Rohan 0.4, Pratiksha D, Dhanashri D, Priya D. I think दूसरे लोग शायद कैलकुलेशन कर रहे हैं. Anyways, let us reveal what is the correct answer. इसका correct answer क्या है देखते हैं. For a tree with DBH is equal to 45.6 cm, height is equal to 27 meters and total stem volume of 1.78 cum, the artificial form factor for the tree is 0.4. Option D is the correct answer. Very nice. आपका calculations एकदम सही है. Okay. Now let us look at कि ये कैसे किया जाता है. What is the artificial form factor? So पहले समझते हैं कि false artificial या breast height form factor क्या होता है. ब्रेस्ट हाइट फॉर्म फैक्टर या आर्टिफिशियल फॉर्म फैक्टर में
बेस ऑफ द सिलेंडर का रेफरेंस ब्रेस्ट हाइट पे मेजर्ड डायमीटर को लिया जाता है. सो अगेन इसका कंपैरिजन हम दूसरे फॉर्म फैक्टर से करेंगे जो हमने सीखा था. एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर, एब्सोल्यूट बेस ऑफ द ट्री में जितना डायमीटर है उसको लिया जाता है. नॉर्मल फॉर्म फैक्टर 0.1% या 10% ट्री हाइट पे जो डायमीटर है उसको लिया जाता है. एंड देन आर्टिफिशियल फॉर्म फैक्टर और ब्रेस्ट हाइट फॉर्म फैक्टर डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट पे लिया जाता है. बट सारे फॉर्म फैक्टर्स का फॉर्मूला एकदम सेम है, विच इज स्टेम वॉल्यूम बाय द सिलेंडर वॉल्यूम. सो क्या क्या हमारा गिवन है हम देख लेते हैं एक बार. हमारे पास क्या क्या गिवन है. डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट ये गिवन है 45.6 सेंटीमीटर. इसका मतलब ब्रेस्ट हाइट पे अगर इफ अ मैन इज स्टैंडिंग हियर, उसका ब्रेस्ट हाइट विल बी जहां उसके हाथ का वो पहुंच है. और ये हाइट इसीलिए लिया जाता है ताकि मेजरमेंट के लिए इजी हो. तो इसके अराउंड अगर वो टेप लगा के मेजर करेगा देन ये जो है दिस इज DBH और डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट दैट इज 45.6 सेंटीमीटर. हाइट विच इज H ऑफ द ट्री इज 27 मीटर्स. ठीक है. तो अगर डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट इज 45.6 सेंटीमीटर, हाइट इज 27 मीटर्स, स्टेम वॉल्यूम just remove this. अगर हम सिलेंडर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा सिलेंडर एरिया का, पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिलेंडर वॉल्यूम. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं. नाउ रेडियस इज हाफ द डायमीटर, दिस इज आर. तो रेडियस को लिख सकते हैं डायमीटर बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर एट 2. यहाँ for artificial form factor D is equal to DBH. ब्रेस्ट हाइट पे जो डायमीटर है दैट इज द डायमीटर फॉर आर्टिफिशियल फॉर्म फैक्टर. तो यहाँ पर हो जाएगा DBH बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू H इज इक्वल टू पाई इंटू DBH बाई 2 इज 0.456 मीटर्स बिकॉज मैंने इसको मीटर में कर दिया है, बाई 2 का स्क्वायर इंटू 27 मीटर्स. ओके. तो इसका कैलकुलेशन कितना आता है देख लेते हैं एक बार. मैं अपना कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं. सो देयर इज 0.456 का स्क्वायर फिर इसको डिवाइड करेंगे बाई 4, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इज अराउंड 4.40. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4.407 मीटर क्यूब. नाउ अभी हमारे पास स्टेम वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.78 क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब. देयरफॉर फॉर्म फैक्टर, the artificial form factor ये कितना होगा. F इज इक्वल टू स्टेम वॉल्यूम, द फॉर्मूला स्टेम वॉल्यूम बाई सिलेंडर वॉल्यूम. ओके. नाउ स्टेम वॉल्यूम इज 1.78 मीटर क्यूब divided by 4.407 meter cube. This is
1.78 divided by 4.407. This is roughly 0.403, जो कि आंसर है हमारा 0.4. इज इट क्लियर टू द स्टूडेंट्स? वैसे आपने सही जवाब दिया है. इट्स 0.4 which is the correct answer, but I just showed you how to calculate the form factor. और यहाँ absolute form factor में जो diameter measure होगा, that is the diameter measured at the breast height. Is everyone clear? क्या सबको समझ में आया? Then let me know with a like or a yes in the comment section, and then हम आगे जा सकते हैं. Very nice. Thanks Sakshi and Prerna. Okay. Let's move to the next question. Question number 6. Consider a stand of eucalyptus trees that are on average 30 centimeter in diameter and spaced on a regular 3 meter grid. Find the spacing factor. एक और पैरामीटर आ गया है ट्री मेजरमेंट या मेंसुरेशन का. यहाँ क्वेश्चन में बताया है देयर इज अ स्टैंड ऑफ यूकैलिप्टस ट्रीज. यूकैलिप्टस ट्रीज का एक स्टैंड है जिसका एवरेज डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर एंड ये लोग एक रेगुलर 3 मीटर एरिया में फैले हुए हैं. तो इनका स्पेसिंग फैक्टर क्या है? व्हाट इज द स्पेसिंग फैक्टर? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी डेटा इनसफिशिएंट फॉर कैलकुलेशन. इनमें से इन यूकैलिप्टस ट्रीज का स्पेसिंग फैक्टर क्या है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. पोस्ट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक इज द करेक्ट आंसर. मैं ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स के बाद आपको बता दूंगा कि क्या सही जवाब है. आई थिंक बहुत लोगों ने आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं. थोड़ा चेक करते हैं कमेंट बॉक्स की क्या आंसर्स आ गए हैं. ओके, साक्षी सेज बी, प्रेरणा बी, प्रिया, प्रतीक्षा, रोहन बी, धनश्री सेज बी. ओके, एनी मोर आंसर्स? क्या किसी और को आंसर देना है? अभी भी टाइम है, आप दे सकते हैं. छोटा सा कैलकुलेशन है. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्पेसिंग फैक्टर एंड उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं. Okay, time to reveal what is the correct answer. Considering a stand of eucalyptus trees that are on an average 30 centimeter in diameter and spaced on regular 3 meter grid, the spacing factor is option B 10. This is the spacing factor for the stand. Option B is the right answer and everyone who has answered is correct. आप सबने सही जवाब दिया है. 10 है उनका स्पेसिंग फैक्टर. ओके, ना अभी समझते हैं स्पेसिंग फैक्टर का मतलब क्या है एंड ये इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है. स्पेसिंग फैक्टर इज अ मेजर यूज्ड इन फॉरेस्ट मेंसुरेशन टू डिस्क्राइब हाउ वाइडली ट्रीज आर स्पेस्ड इन अ स्टैंड रिलेटिव टू देयर हाइट. इट हेल्प्स असेस स्टैंड डेंसिटी एंड कॉम्पिटिशन. सो वेरी सिंपल, एज द नेम सजेस्ट, स्पेसिंग फैक्टर एक पूरे स्टैंड में या जंगल में या प्लांटेशन में दो पेड़ों के बीच में या कितना गैप है या स्पेस है उसको बोलते हैं स्पेसिंग फैक्टर. तो एक इन अ टोटल गिवन एरिया कितने पेड़ वहाँ लगे हुए हैं या आ सकते हैं और उनके बीच में कितना गैप है, दैट इज नोन एज स्पेसिंग फैक्टर एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट. इसका
यूटिलिटी क्या है? इट हेल्प्स असेस स्टैंड डेंसिटी एंड कॉम्पिटिशन बिटवीन द ट्रीज. नाउ स्पेसिंग फैक्टर का फॉर्मूला हमें क्या बोलता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ट्रीज इन सेंटीमीटर बाय एवरेज स्टेम डायमीटर इन सेंटीमीटर. तो एवरेज डिस्टेंस इन द ट्रीज बिटवीन द ट्रीज divided by average stem diameter. For example, if an average stem diameter is 20 cm and trees are spaced at an average distance of 5 meter, then spacing factor is equal to 500 centimeters divided by 20 centimeter, which is 25. समझ में आया? तो प्रीवियस क्वेश्चन के ही इस छोटे से फॉर्मूला में अगर हम डालते हैं, द स्टैंड ऑफ द यूकैलिप्टस ट्रीज एवरेज डायमीटर 30 सेंटीमीटर, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा. एंड स्पेस रेगुलर ग्रिड 3 मीटर्स, तो 300 सेंटीमीटर्स बाय 30 सेंटीमीटर, जहां ये फैक्टर आ जाएगा 10. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैंड बेसल एरिया एंड व्हाट इज स्टैंड स्पेसिंग फैक्टर, एंड इनको हम कैसे समझ सकते हैं. वेरी इजीली ये प्रोफेसर अवधिया ने भी अपने कोर्सेस में समझाया है. लेट अस कंसिडर 3 पॉपुलेशन या 3 स्टैंड्स. 3 प्लॉट्स में ड्रॉ कर रहा हूं यहां. स्टैंड बेसल एरिया एंड स्पेसिंग फैक्टर क्या बोलता है? एक प्लॉट में छोटे छोटे ट्रीज हैं या ट्रीज जिसका डायमीटर कम है, दूसरे में मीडियम साइज्ड है, और तीसरे में बहुत ही बड़े ट्रीज हैं. तो स्टैंड बेसल एरिया क्या है? कि टोटल एरिया कवर्ड बाय द बेस ऑफ ईच ट्री. तो इसका स्टैंड का बेसल एरिया कितना होगा? इस ट्री का एरिया प्लस इसका 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 एरिया. तो टोटल प्लॉट एरिया में टोटल सम ऑफ all basal areas in a stand is equal to stand basal area. एंड स्पेसिंग फैक्टर क्या होता है? कि इन दोनों के बीच में गैप्स कितने हैं, ये बताता है स्पेसिंग फैक्टर. कि इसमें गैप कितना है, इसमें गैप कितना है, इसमें गैप कितना है, इन लोगों में गैप कितना है, आपस में गैप कितना है. सो स्पेसिंग फैक्टर gaps between any two individual members of a stand. ये होता है स्पेसिंग फैक्टर. तो अगर हम इसको एक प्लॉट बनाएं, द वन विच अवधिया सर हैज ऑल्सो सेड, if we plot spacing factor on the x-axis and stand basal area on the y-axis, then हमें ये कर्व कुछ ऐसा मिलेगा. तो इसको समझते हैं. जब स्टैंड बेसल एरिया सब ज़्यादा की तरफ होगा, बहुत ज़्यादा स्टैंड बेसल एरिया होगा, विच इज़ अराउंड दिस पॉइंट, तो स्पेसिंग फैक्टर बहुत कम होगा. इसका मतलब जब ट्रीज में बहुत सारा बेसल एरिया होगा, बड़े बड़े ट्रीज हैं, इसका SBA स्टैंड बेसल एरिया, और इसको अगर SF डिनोट करें, इसका स्टैंड बेसल एरिया बहुत बड़ा है. एंड तभी इसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो स्पेसिंग फैक्टर इसका छोटा है. सो वेन एवर वी हैव लार्ज स्टैंड बेसल एरिया वी हैव अ लेस स्पेसिंग फैक्टर. जबकि ऑन द ऑपोजिट, इफ यू हैव अ हाई स्पेसिंग फैक्टर इन अ कम्युनिटी, देन उसका स्टैंड एरिया कम होता है.
like this community. तो इस कम्युनिटी में अगर देखें तो स्टैंड बेसल एरिया बहुत ज़्यादा है और स्पेसिंग फैक्टर कम है, वेरस यही 3 पेड़ अगर ऐसे पतले पतले पेड़ होते जिनका स्टैंड बेसल एरिया कम होता, वाइल द स्पेसिंग फैक्टर इनका सबसे ज़्यादा होता, क्योंकि इनके बीच में अभी स्पेस बहुत ज़्यादा है. सो इन अ सेम एरिया हम 2 पैरामीटर से हम अपने स्टैंड को डिफाइन कर सकते हैं विथ स्टैंड बेसल एरिया एंड स्पेसिंग फैक्टर. एंड स्पेसिंग फैक्टर का फॉर्मूला जैसे हमने पिछली बार देखा, क्या बताता है स्पेसिंग फैक्टर का फॉर्मूला? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ट्रीज एंड एवरेज स्टेम डायमीटर. डिस्टेंस बिटवीन ट्रीज बाय स्टेम डायमीटर. तो हमारे इक्वेशन में डिस्टेंस बिटवीन 3 है 3 मीटर्स एंड स्टेम डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर. तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में करें तो है 300 सेंटीमीटर्स बाय 30 सेंटीमीटर. सो द स्पेसिंग फैक्टर इज 10. आई होप सबको समझ में आया. वेरी इजी कॉन्सेप्ट, नथिंग टू बी वेरी ऑफ, बट मैं आपको बस समझाना चाहता था कि स्पेसिंग फैक्टर एंड स्टैंड बेसल एरिया कैसे मैटर करता है. अगर आपको समझ में आया देन प्रेस अ येस और आंसर इन द कमेंट बॉक्स with a like or a yes, and then we can move forward. Very nice. Okay, moving to the next question. Diameter over bark DOB, diameter under bark DUB, and bark thickness are related as dash. Diameter over bark, diameter under bark and bark thickness कैसे रिलेटेड हैं, कौन से फॉर्मूला से हम उनको दर्शा सकते हैं? ऑप्शन ए DOB इज इक्वल टू DUB प्लस TB. ऑप्शन बी DOB इज इक्वल टू DUB माइनस TB. ऑप्शन सी DOB इज इक्वल टू DUB प्लस 2TB. ऑप्शन डी DOB इज इक्वल टू DUB माइनस 2TB. यहाँ बार्क के डायमीटर की बात हो रही है. डायमीटर ओवर बार्क, डायमीटर अंडर बार्क एंड बार्क थिकनेस. इसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? Okay, let's take 30 seconds and visit this question again. I will reveal what is the correct answer. मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है. Okay, I think it's time for this question to get its correct answer. Comment box में check करते हैं. Tarsia says C, Priya says C, Sakshi says A, Om says C. Okay, and बाकी लोग क्या आप आंसर देना चाहोगे? बाकी स्टूडेंट्स प्लीज़ आंसर. Whatever is your calculation formula आप मुझे बता सकते हैं. I think let us just move ahead and जिन्होंने भी आंसर नहीं दिया है आपको और मौका मिलेगा आगे. 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, आप अपना आंसर लिख दीजिएगा. ओके, सो डायमीटर ओवर बार्क DOB, डायमीटर अंडर बार्क DUB एंड बार्क थिकनेस आर रिलेटेड एज DOB इज इक्वल टू DUB प्लस 2 into TB. So option C is the right answer.
and all of them have given the correct answer. Om, Sakshi, Priya, Tarsia, very nice. Option C is the correct answer. अभी समझते हैं डायमीटर ओवर बार्क एंड अंडर बार्क क्या होता है एंड थिकनेस क्या होता है. ओके, सो इफ यू जस्ट टेक अ लुक एट दिस बार्क, जब इसका डायमीटर हम मेजर करते हैं, सो ये एक लॉग ऑफ वुड है या ट्री का स्टेम है, इसका जब डायमीटर हम मेजर करते हैं, क्यों मेजर करते हैं? बिकॉज वी वांट टू नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टिम्बर वी कैन गेट फ्रॉम दिस पीस ऑफ स्टेम और वुड. इसका जब डायमीटर मेजर करते हैं, देन इसका एक थिक बार्क है यहाँ पर. सो जब हम टेप लगा के मेजर करते हैं, देर आर टू डायमीटर्स दैट वी आर एक्चुअली लुकिंग एट. एक बाहर का डायमीटर होता है विच इज कॉल्ड डायमीटर ओवर बार्क, जो बार्क को बिना रिमूव किए हम ये करते हैं. देन कुछ जगह पर बार्क का खुद डैमेज हो गया है एंड अंदर का डायमीटर आता है विच इज डायमीटर अंडर बार्क. एंड ये जो बेसल थिकनेस होता है, दैट इज द थिकनेस ऑफ द बार्क विच इज द डेड बार्क. क्या होता है? डेड सेल्स ऑफ द प्लांट जो स्टेम के अराउंड उसको कवर करके प्रोटेक्शन देता है. तो जब हम मेजर करते हैं या व्हेन वी स्टार्ट मेजरिंग इट, we often move over the bark and that is the diameter we measure, which may not be accurate. So diameter under the bark and over the bark are related in such a manner. तो हम उसको देखेंगे. So suppose let me draw a bark here. मैं एक बार्क यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ. Let us assume a circular bark, sorry. Let us assume a roughly circular bark. This is the inner bark, and this is the inner wood, and this is the outer bark. तो हम जब टेप से मेजर करते हैं, हम इस सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं जहाँ से आता है डायमीटर ओवर बार्क और DOB, which is this diameter, total diameter DOB. ना अगर हम सिर्फ इनर डायमीटर मेजर करें सारे बार्क को हटा के, देन इस वैल्यू को हम बोलेंगे DUB और डायमीटर अंडर बार्क. ओके, एंड अगर ये हमारा बार्क का थिकनेस है विच इज लेट्स से TB, थिकनेस ऑफ बार्क, इसको डिनोट करते हैं TB से. देन यहाँ एक TB आ गया और यहाँ एक TB आ गया, तो DOB को क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू DUB plus TB plus TB. So DUB plus TB plus TB. दो साइड पे हम बार्क का थिकनेस को मेजर कर रहे हैं, और DUB plus 2 into TB. यही फॉर्मूला की हम बात कर रहे थे. So diameter over bark is equal to diameter under bark plus 2 into bark thickness. तो जब हम डायमीटर मेजर करते हैं, हम जनरली डायमीटर ओवर बार्क को मेजर करते हैं. एंड अगर हमें बार्क की थिकनेस पता है, देन हम एक्चुअल डायमीटर अंडर द बार्क को इवेलुएट कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू द स्टूडेंट्स? क्या सबको समझ में आया? वेरी नाइस. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. फॉर फॉल्स फॉर्म फैक्टर द रेफरेंस फॉर द बेस ऑफ द सिलेंडर इज डैश. ये क्वेश्चन अभी आपके लिए काफ़ी इजी हो गया है, क्योंकि हमने सारे फॉर्म फैक्टर्स के बारे में समझ लिया है एंड कैलकुलेशंस भी कर लिए हैं. आई होप एवरीवन विल गिव द करेक्ट आंसर. फॉर फॉल्स फॉर्म फैक्टर, reference of the base of the cylinder is dash. Option A, base of the tree. Option B, breast height. Option C, 10% of tree height. Option D, 20% of tree height.
ध्यान रहे हम फॉल्स फॉर्म फैक्टर की बात कर रहे हैं. ओके, आप अपना आंसर्स कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए एंड आई विल लेट यू नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर. ओके, आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए और ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते हैं. लेट अस चेक द कमेंट सेक्शन फॉर आंसर्स. Tarsia says B, Sakshi B, प्रेरणा B, प्रतीक्षा B. ओके, और बाकी थोड़े कम आंसर्स हैं. So for false form factor, reference for the base cylinder is the breast height. Yes, you are correct. Option B is the correct answer. It's the breast height, it's the diameter at the breast height that is used for reference for the base of the cylinder. And उसी को हम बोलते हैं false form factor. Okay, so false artificial or breast height form factor where the reference is the breast height. If a man is standing here, then the height at which he measures the diameter is known as the breast height. यहाँ पर breast height क्यों लिया जाता है? Because the error will be minimized, the area of point of contact will be under observation and diameter जो measure होगा वो accurately measure हो पाएगा. There is no, make sure there is no foliage, there is no buttress, avoiding every other insignificant quantity. This diameter can be taken for the artificial form factor or the false form factor. Now basic comparison between different types of form factor and the reference height. For absolute form factor we have diameter at the ground level or the base of the tree. For normal form factor, diameter at 10% of tree height, which is a standardized value for all over the world. And for false or artificial form factor, diameter at breast height, this value changes from places to places or according to the average population height of the area. Is it clear to the students? 3 different kinds of form factor हमने सबके बारे में समझ लिया कि रेफरेंस सिलेंडर का हाइट कहाँ से लिया जाता है. आई होप इट इज़ क्लियर टू द स्टूडेंट्स. आप लाइक या येस से मुझे बता सकते हैं एंड वी विल मूव फॉरवर्ड. वेरी नाइस. ओके, थैंक यू. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 9. Choose the correct statement. For a non-circular cross-section, girth tape overestimates the sectional area. Option B. For a non-circular cross-section, girth tape underestimates the sectional area. Option C. For a non-circular cross-section, girth tape correctly estimates the sectional area. Option D. None of these is a correct statement. तो आपको स्टेटमेंट्स को केयरफुली पढ़ना है एंड मुझे बताना है इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है. दिस इज अबाउट मेजरमेंट ऑफ द गर्थ टेप इन अ नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्री. कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है कि सही है? Come on guys, post your answers.
आपको क्या लगता है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड गर्थ टेप? Okay, let me check the comment box. Only two answers. Sakshi says A, Om says A, Ruturaj says A. Okay. Any more answers? Now let us see what is the correct answer to this question. Choose the correct statement. And the correct statement is option A. So Sakshi, Om and Ruturaj, you have answered correctly. For a non-circular cross section, गर्थ टेप ओवर एस्टिमेट्स द सेक्शनल एरिया. हमेशा ऐसा होता है कि गर्थ टेप से सब जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के पेड़ पर वो ओवर एस्टिमेट कर लेता है. कैसे ये समझते हैं. सो फॉर मेजरिंग द ट्री डायमीटर वी यूज अ गर्थ टेप और अ मेजरिंग टेप. वी ऑल्सो यूज वर्नियर कैलिपर्स विच आर द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग द ट्री डायमीटर. सो लोअर स्केल आपको सरकमफरेंस देता है एंड अपर स्केल आपको डायमीटर देता है. द अपर लाइन ऑफ द स्केल ऑफ द पेरीमीटर रूलर रीड्स द डायमीटर एंड लोअर लाइन रीड्स द सरकमफरेंस एक्यूरेट टू 1 मिलीमीटर. तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ट्री के आउटर सरफेस पे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, इट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द गर्थ टेप. सॉरी, सो ये है ट्री का, सॉरी तो गंदा हो गया. दिस इज द ट्री शेप and we are using a tape to measure the diameter. So we are using a circumference based method and यहाँ पे हम उसका रीडिंग चेक करेंगे. Now बहुत बारी ये जो ट्री का डायमीटर है हम बाहर के बार्क से मेजर करते हैं. So the tree bark might have bark protrusions जिसको ये टेप ओवर एस्टिमेट कर लेता है. So when we wrap around the tape ये इन सब पॉइंट्स पे टच होके जाता है एंड हमको हमेशा ज़्यादा डायमीटर देता है. सो द एक्चुअल डायमीटर, एक्चुअल सरकमफरेंस अगर ये d है एंड मेजर्ड अगर dm है, सो dm ऑलवेज d से बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ बार्क प्रोट्रूजन्स. बार्क के प्रोट्रूजन्स के लिए ये ऐसा बड़ा हो जाता है एंड ओवर एस्टिमेट्स द एरिया. सो वर्नियर कैलिपर्स इसीलिए बेटर तरीका होता है टू एस्टिमेट द एरिया बिकॉज वर्नियर कैलिपर्स दो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट रखेगा like this, and if we take this measurement at many such points of contacts and average it out, so average reading of many points in the vernier calipers will give us the true circumference. Despite the bark protrusions, क्योंकि वर्नियर कैलिपर सिर्फ दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करता है, वाइल टेप से हम जब मेजर करते हैं वो पूरा चक्कर लगाता है जिसमें ये सारे बार्क प्रोट्रूजन्स भी इंक्लूड हो जाते हैं. दैट इज वाई फॉर टेप हमेशा dm द मेजर्ड डायमीटर इज ग्रेटर दैन d. हमेशा मतलब जब हम बार्क या ऐसे वुडी बार्क के ट्रीज को देखते हैं तब. इज इट अंडरस्टूड टू द स्टूडेंट्स? क्या ये सबको समझ में आया दैट क्यों बार्क का डायमीटर टेप से जब हम मेजर करते हैं तो ओवर एस्टिमेट हो जाता है या एरिया हमें ओवर एस्टिमेटेड एरिया आता है. आई होप इट इज क्लियर टू द स्टूडेंट्स. यू कैन लेट मी नो विद अ लाइक और अ yes in the comment box and हम आगे बढ़ सकते हैं.
Very nice. Okay. Now coming to the final question of this evening. A tree has DBH of 25 centimeter. Find its basal area in square meters. ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है. पेन पेपर उठाइए एंड कैलकुलेशन करिए. द DBH ऑफ अ ट्री इज 25 सेंटीमीटर. आपको उसका बेसल एरिया निकालना है. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इफ यू नो द फॉर्मूला फॉर area of finding area of the tree at the DBH. For your information, DBH is the diameter at breast height. Let's take 30 seconds and come back to this question and I will reveal what is the correct answer. Okay, I think सबने कैलकुलेशन कर लिया होगा. Let us check the comment box for answers. Only one answer. Prerna says option A. Okay, Om says option A. Anyone else? क्या किसी ने कैलकुलेशन किया? इस ट्री का बेसल एरिया स्क्वायर मीटर्स में कितना होगा? Sakshi says A and Dhanashri says A. Okay, very good. Let us see what is the correct answer. A tree has a DBH of 25 centimeter. Find its basal area in square meter. It has 0.49 basal area. Very good. Option A सही जवाब है. Om, Prerna, Sakshi, Dhanashri, very good. And to all those who have not got a chance to answer this session, next class में आपको ज़रूर चांस मिलेगा. प्लीज़ आप पार्टिसिपेट करिए एंड जो भी आपको नहीं समझ में आया आप मुझे पूछ सकते हैं. आई विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एक्सप्लेन इट टू यू गाइस. ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन. सो बेसल एरिया क्या होता है एंड उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. स्टैंड बेसल एरिया हमने जस्ट अभी वो किया है कि इस ट्री का एरिया कितना है या व्हाट इज द एरिया. अब एब्सोल्यूट बेसल एरिया विल बी व्हेन द ट्री बेस के ऊपर जो डायमीटर है उस पे जो एरिया कैलकुलेट करते हैं. बट नाउ वी हैव द डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट which is the DBH. If a person is standing like this and measuring the tree with a tape or a calipers, then this is the DBH. Now the basal area is equal to area of this cylinder formed by this tree with a diameter of DBH is equal to pi r square h. Sorry, this is the volume. So basal area क्या होगा? Pi r square. Okay. So pi r को हम क्या लिख सकते हैं? d by 2 का whole square and pi d is the dbh here because it's the distance at the diameter at breast height. Now pi by 4 into dbh square is 0.25. So this is 25 cm. So this is 0.25 meter ka square is equal to pi by 4 into 0.625 meter square. This is roughly equal to 0.49 meter square. So this is the calculation, very easy. Pi r square, the basal area where the diameter at breast height is taken for the imaginary cylinder, and then the basal area of the tree is found to be 0.49 meter square. Is it clear to the students? Is it okay?
If it's clear to the students, yes, thank you for letting me know. For with this we have come to the end of our TA session. I will turn off my slides, and all these calculations I'll preserve so that I can share it with you guys. Let me come back to the class, stop presenting. Okay, so I hope everyone was able to follow all the explanations and all the calculations that we did together, and this was more of an interactive class, but sad to see that the population was thin, काफ़ी लोग नहीं थे, but it's okay. बट मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि आप पार्टिसिपेट करिए, आप क्वेश्चन आंसर सेशन में मुझसे क्वेश्चन पूछिए. इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट्स, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको इस लेक्चर मॉड्यूल से नहीं समझ आया है, देन यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स. मैं आपको लिए रिपीट कर सकता हूँ, या कोई भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझ में आया है तो मैं अभी मौका है, मैं अभी कर सकता हूँ. और इफ़ यू लाइक द क्लास, then well and good, then let me know, give me feedback. Sir, can we use a calculator in the exam to solve the problems? Yes, Tasya, you can. The formula will be yours, but the calculation can be done by the calculator, because multiplying pi and squaring things will be difficult otherwise. You can use a calculator in the exam. Okay. Any other questions, or did you like the class? If you have any feedback on the way I conduct the class, मैं कैसे क्लास पढ़ाता हूँ, स्लाइड्स में आपको अगर कोई चेंजेस चाहिए, क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको क्या चेंजेस चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं. इफ़ यू लाइक द क्लास, देन हिट मी अ लाइक और go watch this recorded lecture on YouTube, which will be provided to you and all your friends. Okay. If no one has any questions, then I will end this call and see you next Saturday at 3 p.m. with the same enthusiasm, where we will be dealing with questions from lecture week 5. So आप अपने lectures सब पढ़ के आइए, अपने questions सब देख के आइए अपने नए questions के लिए. We will be solving some of the example questions, उनके concepts हम समझेंगे and try to clear as many doubts as possible. आप सबको communicate करने का मौका मिलेगा, and please आप मुझसे question पूछिए तो फिर मैं आपका doubt clear कर पाऊँगा. Okay, I think there are no more questions. Chat box या mic पे, I think everyone is fine with the concepts. So the thing that I will do is I will end this call. See you next Saturday, and bye bye. I will end this call for everyone.